गदर 2 के बाद फिर एक बार लौट कर आ गए हैं एक्शन जैक्सन अंदाज में सनी देओल, जो लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म जाट, जिसमें है धमाकेदार एक्शन और फुल ऑन ड्रामा। भाई इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपी चंद ने। ऐसे में मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां नजर आई पूरी फिल्म की कास्ट एंड क्रू। ऐसे में देखिए दिख रही है कलाकारों की एक्साइटमेंट। भाई ट्रेलर तो धमाकेदार है ही। आइए जानते हैं कलाकारों से कि आखिर अपनी आने वाली इस फिल्म को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। Sitting here, Sunny sir and Randeep ji and brother and all my producers and my distributor Anil Garu. And I am really very happy to direct the legend of Telugu Indian industry, Bollywood industry and Indian industry, wow. Sunny Deol Garu. I love action films and I saw all of his films when I am directing before. I saw when I am growing up as a child, I saw his action films Gatak, Jiddi and Damini. Damini is my favorite and he is walking, that is, and when I saw that film recently, again I am directing Sunny sir, I saw Damini, and I want to show this Sunny Deol to again to audience. And when I'm directing Sunny sir, really I'm very happy, and I never seen that a star very humble and very lovely person. Sir, I love you, sir. I love you, and when I'm working with you, and I know how the legend is here and how the action star is here, and when I'm directing this star, I'm really every day I'm loving him, and I'm showing my love in this film. Actually, this film is, you can see this film is very realistic approach, and that is commercial way. So everyone, any regular thing, we can ask somebody some reason. Sorry, sorry, bol is like that only. It's very common word. So for this film, it is a proper situation is there. So you can see in the film how Sari is going. Can't expect anything bigger than this. And thank you so much, sir, for giving us this opportunity. And the same working with Randeep sir, Vinny sir, and all the entire cast. And Director Garu Gopi Chand. Right. This is our second film. He did 7 films, all 7 blockbusters. He is the master's director, and the combination, it's going to rock. Right. As Naveen told, we are very happy to work with Sunny sir. So Gopi Chand already told, like, see, from our childhood we are seeing him, all his mass action films, and as he told, he wanted to recreate same Sunny sir once again in this era, and it will be a very different action. Definitely, we feel like this would really create records. Thank you, Sunny sir, and also Randeep Huda sir. He added a great value to the film, and Vinit sir. Thank you, sir. Your presence would be very good in the film, and you'll be watching this film on April 10th. It will be a humongous film. That's what we are all believing. Thank you, one and all. We have come here to make global films. So we started with Telugu, then Kannada and Tamil. So we are very glad we are getting an extraordinary debut into the Bollywood with Sunny sir. So we are very happy to launch a commercial entertainer after Gadar 2, something similar or a more action-oriented, high-octane commercial entertainer.
So we are happy to collaborate with Maitri and enter the Bollywood. And Gopi Chand sir is going to give us to deliver what we are expecting, or a lot more than what we expected, and you could see that in the trailer. And thanks to Randeep sir and Vineet, be part of this and make it this grand success. Thank you. कोयल की आवाज़ से तो दिन शुरू होता है, और मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो सुबह सुबह ये आवाज़ सुनाई देती थी, इसे यूज़ कर लिया है, तो ये सुनाई देगी फिल्म में. थैंक यू सो मच सनी सर. मैं क्या बोलूँ, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है. एंड थैंक यू सो मच गोपी सर. ही सो, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास. ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड, एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का. थैंक यू सो मच. मैत्री, जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2, और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है. एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर. बहुत ही सुंदर अनुभव था. प्रोड्यूसर्स वहाँ ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रोड्यूसर आ गए, एंड प्रोड्यूसर सेट पे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता. या सो हम्बल, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच रणदीप भाई. इस बार भाई ही बने हैं, इतना तो चलिए ओपन कर ही देता हूँ. कुछ मिस इन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. मैंने खुद डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे. तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu actually who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so that was a problem. But that's the beauty of entertainment. If there was anybody else playing Jat except for Sunny Baji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he is so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Baji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था, यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said, just follow me, and I said, इसमें logic क्या है? बोलते हैं, there is no logic, only magic, which we can see on the screen. And I also would like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and all the producers. They've been very sweet. And one thing I like about the South film industry very much, my first time working there, is the producers really, really have a lot of respect for the vision of the director and the director. And that is something we should all follow, even in Bollywood industry. So I'm very happy to be a part of it. Rana Tunga, yeah. But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, नवीन जी ने आके मुझे पहले साइन किया था गदर के वक्त, and we were very excited to do a film. कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई. तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गोपी, एंड दैट आल्सो इन गोवा. एंड ही सेड, या वी विल डू दिस फिल्म, बट आई हैव गॉट अ सब्जेक्ट व्हिच आई वांट टू नरेट. आई सेड, ओके, लेट्स हियर द सब्जेक्ट. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो बोला, नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे. बिकॉज उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, आई जस्ट बिलीव्ड इट, एंड उस तरह से ये फिल्म बनी. एंड देन ऑब्वियसली माय प्रोड्यूसर्स, दे हैव बीन सो गुड. हम सच्ची मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ, इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है.
प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है। और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया। शायद मैं वहीं जाके सेटल हो जाऊँ। हाँ जी। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, वो बहुत मज़ा आया। एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं। और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, हम लोग फिर कैसे खो जाते थे। दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट जाट इज़ ऑल अबाउट। एंड जो कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, से सॉरी। देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ कहाँ नहीं है। और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं, और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। This year, we are planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on Direct Action Day. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup for the year. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए। हम अपने रूट्स वापस ले आएँ, जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविजिट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीजर आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं। हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुंच नहीं रही है। ट्रू। लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ। तो दूर तक जाएगी ये फिल्म। मेरे फैंस देंगे कि वाई एम आई सो रेलिवेंट, और कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा। मेरा बस काम है, बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माई डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माई ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाटएवर वी हैव विद इन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर। हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें।
तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर गुड इनफ टू एंटरटेन देम, आई थिंक विल ऑलवेज बी देयर. I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres and all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In the Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director, and which is thing. And that's another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie, and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. देखिए, वी आर ऑल एक्टर्स. हाँ, जाट हैं, जट हैं, लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं. तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं, सब जाट ही होते हैं. उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते. और कहीं कुछ तकलीफ़ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं. तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं. वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है. समय समय की बात आती है, वक्त आता है. और रणदीप और हम दोनों, आई मीन ऑब्वियसली ये कहते हैं कि आई हैव सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड. मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है. Sorry, Baji, sorry. क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है. और पापा को देख लीजिए. एंड ये फिल्म में भी हम, इट वॉज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. हाँ, मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है. सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है. वो ही इज़ नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर. यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड. No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको बेधड़क होके कर. और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज़म बहुत होती है हमारे यहाँ. तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर. And he's such a sweetheart. He's always full of advice, and he was always trying to calm you down. And his soft-spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. कहानी अच्छी होनी चाहिए एंड देन डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से. और जैसे आप पूछ रहे थे कि अब हीरो और फिर विलेन क्यों ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज़ एन एक्टर. ही इज़ नॉट अ हीरो और अ विलेन, ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर. और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड. When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूं जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, हमें मज़ा नहीं आया. तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है. जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है. अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक दो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है. जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है. तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया. मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था. बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं,
बस वही प्रयास किया है और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, गोपी सर ही इज़ आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। No, no, no. In fact, I have newfound respect for all my directors, and I think I was trying to solve any. I was there for him to for anything, so that his job as a director becomes easier. I think I'm a more understanding and better actor since I've been a director. Yeah, thank you. आपको बता दें कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल 2025 में। तो भाई अब देखना होगा कि जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।